electrons constituting 1 coulomb of charge. Yeah, it's rather same. How many electrons will combine Yes, sir. to form 1 No, coulomb? it's the same. Yes. Yeah. So this is our I quick. guess we have to multiply 1 by 1.6 into 10 raised to the power minus No, brother, 19, no, brother. One electron or 1 constitutes a charge of into. 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb, right? Yes, sir. Right? So if I Yes, need sir. to calculate how many electrons will be there in 1 coulomb, then I can simply say 1 divided by 1.6 into 10 raised to the power minus 19. Right or wrong? Right or wrong? Am I clear, brother? I have just cross multiplied this value down there. Hello, Arnav, are you there? Yes, sir. Yeah. Right, sir. तो अभी हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं, तो अभी आप इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हैं या मैं बताऊं आपको हाउ विल वी कैलकुलेट? ट्राई कैलकुलेटिंग दिस. So, calculate means to the decimal. Yeah. Remove this decimal. We will be getting a very good answer for this. Sir, if we remove the decimal, then we'll add a zero on the Okay. that Let upper me side. show you. Let me show you. We can write it as 1 coulomb equals to 1 divided by 1.6 into 10 raised to the power of plus 19. Is it right or wrong? Yes, sir. Right? I can It's right, sir. write it as 10 divided by 1.6 into 10 raised to the power 18. Right or wrong? Or Yes, sir. 100 divided by 16 into 10 raised to the power plus of 18. Right or wrong? That's a bit. You can Yes, sir. calculate in rough that 16 and over here you take 100. 16 multiplied by 6 equals how much? Please calculate. Is it 96? 16 multiplied by 6. 96. Yes, sir. 4.02. We would be getting here 32, then 8, then 0, then 5. Is it clear, brother? Yes, sir. So this value will be equal to 6.25 into 10 raised to the power plus of 18 electrons. So 1 coulomb constitute how many electrons? 6.25 into 10 raised to the power 6.25 plus 18. इतने plus सारे 18. Yes, sir. जब जाके इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तब जाके एक कूलम का चार्ज बनता है. आपको इतनी बात समझ में आई? तो एक कूलम Yes, sir. बहुत छोटा सा नहीं है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन ने मिला के एक कूलम चार्ज बनाया है. तो अब आपके स्कूल में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर से इन 2.5 कूलम और 1/2 ऑफ कूलम, एनीथिंग, सिंस यू नो कि एक कूलम में 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर प्लस 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो अब आप कोई सा भी आंसर निकाल देंगे या नहीं निकाल देंगे, बच्चे बताइए. Yes, sir. उसको simply उस number से multiply कर दें. बिल्कुल राइट. प्लीज कॉपी इट डाउन, देन वी विल प्रोसीड फर्दर. Sir, so just give me 1 second. या, टेक योर टाइम. अभी एक टाइम का लेता हूँ. वो बच्चे ले गए. Yes, sir. I'm done with it.
Sir, I'm done with it. Okay, just allow me a minute. Okay, sir. तो वो आपसे यहाँ और भी क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको ऐसे ही वो आपके इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर 1 सेकंड में और 1 एम्पेयर का करंट है तो कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं थ्रू अ वायर। आपको क्वेश्चन समझ में आया? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स Yes, sir. विल बी पासिंग थ्रू अ वायर इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर्स flows for 1 second? So answer will be same, right? That is the same, yes, sir. Because I've got my it question, will be brother. 1 coulomb. Yes, sir. Okay. If I say, you just need to answer कि क्या करेंगे आप। If suppose a current of 2.5 ampere is flowing through a wire for 1 second, then how many electrons will be passing through the conductor? The time is 1 second. Yeah, but current is Sir, 2.5 ampere. so sir, the charge will be 2.5 Yeah, the charge will be 2.5 of coulomb. That's why coulomb. 2.5 into this particular number of 6 electrons. point, yes, sir. 6.25 into 10 raised to the power plus 18. Yes, exactly. Yes, sir. हम्म तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हम्म अभी हमने क्या देख लिया? हमने ये समझ लिया कि करंट क्या है, ठीक है ना। उसके बाद एनसीईआरटी में क्या आता है? पोटेंशियल डिफरेंस आता है डायरेक्टली क्या? हाँ। Yes, sir. Electric and potential difference. ओके Topic number 12.2. ओके ब्रदर, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको समझने के लिए अभी हम एग्जांपल भी लेंगे और एक चीज और समझा रहा हूं मैं। भाई नेचर में 2 तरीके के चार्जेस देखे गए, एक तो प्लस और एक माइनस, ठीक है। तो अगर ये प्लस और Yes. माइनस हैं तो क्या ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? Sir, opposites attract. या तो और अगर ये बच्चे प्लस हुआ और ये भी प्लस हुआ तो अभी ये क्या करेंगे? रिपेल, राइट और रॉन्ग? Repel. Yes, sir. Repel करेंगे. You're right, sir. तो अगर मैं इस वाले चार्ज को, इसको आप 1 बोल दीजिए, इसको 2 बोल दीजिए, और मैं इसको यहां से यहां लाना चाहूं, 2 वाले को 1 की तरफ लाना चाहूं, तो क्या 2 वाला अगर जैसे यहां आ गया होगा तो इस पे इधर को फोर्स लग रही होगी? ऐसा भी आपकी बुक में Yes, एक्सप्लेन नहीं किया गया है वैसे, लेकिन इसको थोड़े डीप लेवल पर समझते हैं हम, और 12th की बुक में इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है इसको, ठीक है। ये समझ में आया yes, अभी sir. आपको? तो आपने बच्चे एक Yes, sir. फॉर्मूला पढ़ा होगा, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, 9th क्लास में, Yes, sir. ठीक है। तो कुल मिला के अगर आपको सेकंड वाला चार्ज फर्स्ट वाले चार्ज के जैसे जैसे आप पास लाओगे तो उस पर फोर्स लग रही होगी, टुवर्ड्स राइट, पर आपको क्योंकि मूव कराना है तो आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे बच्चे? आप लगा रहे होंगे इस डायरेक्शन में फोर्स, राइट और रॉन्ग? ये जो ये ना Yes, येलो sir. से बनाया, फोर्स Yes, sir. अप्लाइड बाय अस, Yes, अप्लाइड sir. बाय अस, ठीक है। और ये इस पर नेचुरली, ये जो ऑरेंज वाला है ये नेचुरली इस पर फोर्स राइट में लग रही होगी, राइट। तो अगर Yes, sir. हमें इसको यहां से यहां लाना है तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा, राइट और रॉन्ग? बिकॉज फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है। Yes, sir. करना पड़ा आपको work. ये बात समझ में आई? तो Yes, पोटेंशियल sir. डिफरेंस यही होता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्या बोला मैंने? दोबारा से लिखते हैं जरा। पोटेंशियल डिफरेंस को मैं पीडी लिख रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, और अभी जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन है अभी हम उसको भी देखेंगे। इज इज द अमाउंट ऑफ, अभी मैं अपने लैंग्वेज के हिसाब से समझा रहा हूँ, ठीक है बच्चे। वर्क Yes, sir. इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव मतलब एक यूनिट, यूनिटी या यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है बच्चे। यूनिट पॉजिटिव Okay, sir. ऐसे लिख दीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए। टेस्ट चार्ज तो 12th क्लास की बुक में लिखते हैं, अभी आप लिख सकते हैं खाली चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू। सर कैसा चार्ज लिखते हैं?
टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज एज इन जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिस चार्ज को हम एक जगह से दूसरी जगह ला रहे हैं, टेस्ट मतलब टेस्टिंग के लिए यूज किया, राइट। तो इसकी ओके सर। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमने क्या देखा कि वर्क क्या है, ओ सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, W/Q, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। राइट और रॉन्ग, आपको ये बात समझ में आई मैंने क्या बोला? ये पोटेंशियल यस डिफरेंस सर। क्या है बच्चे? वर्क बाय डन। चार्ज, वर्क डन चार्ज। पर यूनिट चार्ज, राइट। तो पोटेंशियल यस डिफरेंस सर। की जरा हम यूनिट लिखते हैं, अभी हम यहाँ पे यूनिट लिखेंगे इन सबकी। सर जितना जितना पोटेंशियल आपको पता है उतना डिफरेंस। बता दीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस की बच्चे होती है वोल्ट, डिनोटेड बाय वोल्ट। कैपिटल वी, राइट। कैपिटल वी। यस सर। चार्ज की बच्चे आपको पता ही है क्या होती है, कूलॉम, डिनोटेड बाय कैपिटल कोलोम। वी। वर्क की पता है तो बताइए, वरना मुझे खुशी होगी अगर सर। आपने बता दिया। सर वर्क की आर होती है शायद। इट्स जूल, जूल जूल, डिवाइडेड सॉरी, बाय यस जूल। कैपिटल जे। ओके ब्रदर, अभी आपको इतना बेसिक यस सर। समझ में आया। अभी आप यस सर। इसको, अभी डीप अंडरस्टैंडिंग और आएगी, ठीक है ना। अभी एक बेसिक आइडिया दिया है, अब इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी आप प्लीज ओके इतना सर। लिखिए। लिख लिया सर मैंने। अच्छा, लिख लिया आपने? यस सर। जस्ट अलाउ मी अ मिनट देन। ओके सर। राइट। हम्म। तो अभी और समझते हैं। सर सॉरी, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट हम्म। अगर आप राइटिंग वो यूज कर रहे हैं स्टाइलिस, तो आप कोई और सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं। हाँ, बताइए, कोई सजेस्ट करिए, क्योंकि मैंने अभी ऑनलाइन, यार मैं एक्चुअली पढ़ाता नहीं था ना, पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मेरे को ज़्यादा ओके सॉफ्टवेयर सर। का आइडिया नहीं। सर कोई आप करिए आप। क्रोम पे जाके देख सकते हैं। अभी तो आप इस पे पढ़ा दीजिए, मैं आपको आई सर्च फॉर इट, देन आई टेल यू अबाउट इट। ओके ओके, मैं भी सर्च करता हूँ। ओके सर। या एक्चुअली यार मेरे को ना टाइम नहीं मिल पाता, बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता हूँ मैं अभी ऑफिस यस से सर। आया, आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मेरी एक और क्लास है, फिर शायद मैं कहीं खेलने जाऊँ और फिर मैं सो जाऊँगा बस। तो बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है। चलिए खैर, इसको देखते हैं अभी हम। सर आप कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं? बैडमिंटन। ओह वाओ, इट्स अ नाइस स्पोर्ट। ओके, You should आपका शाल। try basketball sometimes. श्योर, आई एम बैड एट दैट। Oh, या, सो बेसिकली वी आर अंडरस्टैंडिंग पोटेंशियल डिफरेंस, potential ठीक है। difference, yes, sir. अभी ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो काफ़ी सारी बुक्स में दिया भी रहता है, वैसे आईसीएससी की बुक में स्पेशली दिया रहता है ये, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है बॉटम से बड़ा है कंटेनर, मतलब ये लेंथ समझने को आप अज्यूम कर लीजिए, अगर ये 10 सेंटीमीटर है, देन से ये 15 सेंटीमीटर है, जस्ट आपको बताने के लिए कि ये वाला जो कंटेनर है ये बड़ा है। इतनी बात समझ में आई आपको? तो Yes, sir. इसमें बच्चे यहाँ तक पानी है, और इसमें भी यहाँ तक पानी है। तो अभी मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें लेट्स से ये 12 सेंटीमीटर तक मान लेते हैं बच्चे हम, ठीक है। आपको ये बात Yes, समझ sir. में आ गई? दिस इज वाटर और एनी लिक्विड, जरूरी नहीं वाटर ही हो, दोनों में सेम लिक्विड है कोई लेकिन, ठीक है। कोई भी सॉल्वेंट है, yes, sir. हाँ, लेकिन हम इजीनेस के लिए बच्चे वाटर ले लेते हैं, ठीक है। तो Okay, आपने sir. क्या किया, यहाँ पे बच्चे एक पाइप लगा दिया, ए ऐसे, राइट। तो आपको क्या लगता है, विल वाटर, इसको हम कंटेनर वन बोलते हैं, इसको हम कंटेनर टू बोलते हैं, विल एनी वाटर फ्लो, विल एनी वाटर फ्लो 1 to 2 और 2 to 1, क्या कहीं से कहीं पानी फ्लो करेगा या नहीं? सर शायद 1 से 2 करे, नहीं 2 से 1 करेगा शायद। नहीं बच्चे, कहीं से कहीं भी नहीं करेगा, क्योंकि ये सेम वर्टिकल लेवल पे है। ये जो वर्टिकल लेवल मैंने 12 सेंटीमीटर बनाया है ना, तो क्योंकि ये Yes, पानी sir. इक्वल प्रेशर लगा रहे होंगे, अभी आपको प्रेशर क्या उतनी डिटेल नहीं पता होगी वैसे तो खैर, लेकिन कॉमन सेंस की बात है, ये दोनों इकसार प्रेशर लगा रहे हैं इधर से, क्योंकि सेम वर्टिकल लेवल है ये जो ये है ना। तो Yes, आप sir. एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं, दो पानी की बोतल ले लीजिएगा, दो पानी की बोतल लेके एग्जैक्टली सेम वर्टिकल लेवल तक पानी फिल करिएगा,
एक चाहे तो आप 2 लीटर वाली ले लीजिए और एक 1 लीटर वाली ले लीजिए, तो ऑब्वियसली 2 लीटर वाली मोटी होगी बेस पे से, राइट और रॉन्ग? और यस सर। उसपे एक स्ट्रॉ से छेद कर दीजिए, प्रोवाइडेड ये छेद भी जो है सेम लेवल पे हो। मान लीजिए नीचे से अगर हमने 2 सेंटीमीटर पे किया है, तो इसको भी 2 सेंटीमीटर पर करने की कोशिश करिएगा, वैसे उससे भी ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है? यस सर। अब देखेंगे कि कहीं से कहीं भी फ्लो नहीं होगा वाटर। यहां से मैं आपको वाटर। समझाना क्या चाहता हूं कि इफ देयर हैड बीन अ वाटर पोटेंशियल डिफरेंस, देन वाटर हैड फ्लोड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। दैट इज, यस सर। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2 ग्लासेस। अब की बार और एग्जाम्पल देखिए आप, ऑलमोस्ट सेम के मान लीजिए, चाहे इनका बेस थोड़ा अलग अलग मान लीजिए। अभी हम इसमें वाटर, चलो ब्लू से ही बनाते हैं, इसमें मैंने इतना पानी रख लिया और मैंने सिर्फ इसमें इतना सा रखा, और इनको मैंने बिल्कुल नीचे से कनेक्ट कर दिया एक पाइप से, स्ट्रॉ, ठीक है? थोड़ी यस सर। ड्राइंग पे मत जाइएगा बच्चे, ये जो है ना, स्ट्रॉ इक्वल है, ठीक है? यस सर। प्रॉपर स्ट्रॉ है। यस सर। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये कंटेनर 1, ये कंटेनर 2, पानी कब तक फ्लो करता रहेगा? सर जब तक कंटेनर 1 और 2 में पानी इक्वल नहीं हो जाता। वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर वेरी करेक्ट। लगभग लगभग ऐसी कुछ सिचुएशन बन जाएगी कि अपन के पास जो है, ये लगभग यहां तक और यहां तक, जब तक इनमें पानी बराबर नहीं हो जाएगा, जब तक ये वाटर का फ्लो होता रहेगा, ठीक है बच्चे? कॉमन सेंस की बात है ये, यस ठीक सर। है ना? सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हाँ सर, मैं आपकी ये है। बात समझ गया। द थिंग यू हेलो, योर आर वॉइस। ट्राइंग टू से, आई गेट इट। हेलो। सर, आई एम सेइंग जो आप कह रहे थे वो मैं समझ गया। अच्छा, हेलो। समझ गए आप मेरी बात? सो देयर इज अ यस सर। यस सर। डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस between water potential or water level, water potential or water level, so there will be a flow, so there will be a flow of water from one container to another, ऐसे करके आप इसको लिख लीजिएगा। तो यही बेसिक आइडिया है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, कि अगर चार्ज को डिफरेंस मिल रहा है पोटेंशियल का, तो वो फ्लो कर जाएगा, वरना नहीं फ्लो करेगा। वरना आपको उसे अगर फ्लो कराना है तो कुछ ना कुछ आपको एक्सटर्नल फैक्टर लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है बच्चे, ये वाला एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, दिस वन, यस सर। आई एम रेफरिंग टू यस दिस सर। एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल, राइट? ओके सर। अभी यहाँ पे वाटर का डिफरेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन आप क्या करिए, यहाँ पे एक डिस्क सी टाइप की कुछ लिया, ये कोई कंटेनर, जैसे कि आपने इसको सपोज कर लीजिए कि ये हमारी है बकेट, राइट? ये 2 बकेट्स हैं हमारी, राइट, जिनमें वाटर फिल्ड है ये। तो इसमें अगर आप ऊपर से ला के एक प्लेट रख दीजिए बड़ी सी, जो बिल्कुल इसके साइज की फिक्स हो जाती है, ऐसा मैं बना देता हूँ लगभग, ये समझे आप? ये जो ब्लैक वाली मैंने अभी बनाई है ऐसे, तो यहाँ पे आपने एक कंटेनर यस सर। पर एक प्लेट ला के रख दिया ऐसा कुछ, और आप इस पे फोर्स लगा दें, नीचे को यहाँ से फोर्स लगा दें आप, तो क्या पानी यस सर। ऊपर चढ़ जाएगा इसमें? यस सर, चढ़ जाएगा। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस को अनइक्वल करने के लिए अभी यहाँ पे क्या, एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ गई, राइट और रॉन्ग? एक्सटर्नल फोर्स, यस सर। राइट। तो ऐसे ही है उसमें, तो अगर हमारे चार्जेस ऐसे ही फ्लो नहीं कर जाएंगे, हमें उनमें एक बैटरी लगानी पड़ती है। बैटरी क्या करती है? बैटरी का काम ही ये होता है कि वो पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन कराए। इसका एक और एग्जांपल समझाता हूं मैं, अभी पहले आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप टाइम के साथ इसको भूल जाएं, तो प्लीज आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लीजिए बस इसको, राइट? ओके सर। अभी एक और अच्छा एग्जांपल दिखाने वाला हूं बच्चे मैं आपको, ठीक है? ओके सर, आप रहते कहाँ पर हैं? पुणे। Okay. So you're originally from Meerut only? या, टिल मे आई वॉज इन मेरठ। Okay. Okay, sir. नौचंदी देखिए आपने, नौचंदी, नौचंदी मेला? Yes sir, कई बार गया हूँ। Yes sir. हाँ, तो उसके जहाँ नौचंदी एंड होती है ना, भवानी नगर, सुना है आपने भवानी नगर? Yes sir.
यस सर, पास सुना है। में रहता हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा पास में ही रहता हूँ उसके। ओके सर। शापिर गेट अराउंड वहीं पर? नहीं नहीं, शाहपुर में नहीं, तो अलग हो शापिर गया। गेट नहीं। शापिर गेट अलग हो गया। हम्म। क्या नाम है? एनएफसी रेस्टोरेंट रामलीला देखा है आपने? एनएफसी में। रेस्टोरेंट, एनएफसी नहीं। सिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल देखा है सर। उससे आधा किलोमीटर आगे ही रहता हूँ बच्चे में। ओके हम्म। सर, आइएगा कभी घर पे अगर आप यहाँ आएंगे। श्योर। आई लिव इन साकेत पर। यू लिव इन? साकेत। ओके ओके ओके। न्यू वेज, नियर न्यू वेज। न्यू वेज बहुत आता था मैं। यस सर। न्यू वेज, यस यस यस, न्यू वेज, ये न्यू वेज। मेरे तो यहाँ फ्रेंड की का बटर शॉप पेटी है वो, खोल सी। राघव का ना। मेरा फ्रेंड ही है जिसका शॉप है वो, राघव। राघव, ओके सर। हाँ। चलिए अभी हम बच्चे आगे देखते हैं। हमने पोटेंशियल डिफरेंस को समझा। एक और अच्छा एग्जांपल, पंप। आपने घर पे पंप देखा है? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मोटर यस सर। पंप ऐसे करके लिख देते हैं हम। इलेक्ट्रिक वाटर यस सर। मोटर पंप ऐसे समरसेवर। लिख लीजिए। तो पंप समरसेवर। फंक्शन, हाँ, सबमर्सिबल पंप, एग्जैक्टली। ये आपका घर का टैंक है ऊपर, ये आपका घर है। ठीक है बच्चे, लेट्स से यस सर। हमने इसको बोल दिया ग्राउंड फ्लोर, एंड दिस इज फर्स्ट फ्लोर। और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये आपका टैंक है बच्चे। ठीक है, ओके। और ये आपका ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे पानी है, ठीक है ना, यहाँ पे ओके हमारा सर। पानी है, राइट। यस सर। यहाँ पे आपने लगा दिया बच्चे एक पंप। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में कोई भी चीज अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे तो खुद आ जाती है, पर यस अगर सर। किसी ड्यू टू ग्रेविटी। पोटेंशियल, हाँ बिल्कुल, किसी भी लोअर पोटेंशियल को हायर पोटेंशियल पे पहुंचाना हो, देन वी नीड एन एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर पानी यहाँ पे जो वाटर है हमारा बच्चे, इसको मैं ऊपर पहुंचाना चाहता हूं तो आई विल रिक्वायर अ पंप। पंप, यस सर। राइट और रॉन्ग? यस सर, यू राइट। लिख लीजिए। बिकॉज ये लोअर वाटर लेवल है या लोअर पोटेंशियल लेवल है, पोटेंशियल, एंड दिस इज एट हायर पोटेंशियल, राइट और रॉन्ग? लेकिन यस सर। आप उल्टा सोचिए, अगर इस टैंक में पानी है तो आप अपना नीचे टैप खोल दीजिए, खुद ही नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ये बताइए, कॉमन सेंस की बात, हाँ या ना? यस सर, खुद ही आ जाता है नीचे। हाँ, और ये जितना लेवल नीचे होगा ना, सपोज आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, एक बार शावर यहाँ लगाइए फर्स्ट फ्लोर पे, एक बार शावर यहाँ लगाइए। इस वाले शावर में हल्का फ्लो आएगा, इस वाले शावर में तेज फ्लो आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो डिफरेंस पोटेंशियल का इतना सा है, सिर्फ इसमें इतना ज्यादा है, कम है। राइट और रॉन्ग? यस सर। आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं। आपके घर पे अगर 2 फ्लोर हों नहीं। और दोनों जगह नहीं सर, मैं ऊपर यस सर, मैं फर्स्ट पानी कम मेरा रूम। आएगा या थोड़ा सा हल्का आएगा? यस सर। खैर, इसको इम्प्रूव करने के लिए अब तो डिवाइसेस आती हैं। सर, जो मेरा रूम है, मेरा रूम फर्स्ट फ्लोर पे ही है, तो आई ऑलवेज, यस सर, आई ऑलवेज टेक अ शावर इन द ग्राउंड फ्लोर। हाँ, तो थोड़ा सा जो है पानी का पक्का से फर्क महसूस होगा आपको कि ग्राउंड फ्लोर पे तो जो है यस सर, ज्यादा अच्छा आ लगता रहा है। है और फर्स्ट पे कम। ये खैर कॉमन सेंस की बात यस। है, एंड इट इज हैपनिंग ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द लेवल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन वाटर। ठीक है बच्चे, ये समझ में आया यस सर। आपको? ये मैं क्या एग्जांपल समझाना चाह रहा हूं? तो एनीथिंग इन द यस सर। वर्ल्ड कैन ट्रैवल फ्रॉम हायर पोटेंशियल लेवल टू लोअर पोटेंशियल बाय इटसेल्फ, but if we need to move from lower potential to higher potential, then we need an external force, right or wrong? यस सर। तो अब आते हैं हम बैटरी के केस पे, ध्यान से समझिएगा आप। बैटरी बच्चे ऐसी होती है, हाँ या ना? और हमने कुछ ऐसा सर्किट यस सर। बना लिया था, दिस समथिंग लाइक दिस, देन ओवर हियर अ सर्किट, बेसिकली स्विच, नॉट सर्किट, दिस इज होल इज अ सर्किट। तो दुनिया में पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके के चार्ज पाए गए, ऐसा इसमें करंट फ्लो हमने पढ़ा था। यस सर। तो बैटरी बच्ची यही करती है, बैटरी। अच्छा हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल इज टेकन एट हायर पोटेंशियल
एंड नेगेटिव वाला जो होता है वो आपका लोअर पोटेंशियल पे लिया लोअर जाता है बाय पोटेंशियल। कन्वेंशन। ठीक है। यस सर। पॉजिटिव टर्मिनल इज ऑलवेज एट higher potential and negative हायर is पोटेंशियल। at low potential. So लोअर current is flowing from positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery, right or wrong? यस सर। Current flows from higher potential to lower potential, इस तरीके लोअर पोटेंशियल, से यस लिख सर। लेंगे, या मेरे को लिखवाने की यस सर। जरूरत है? मैं दो नहीं तीन सर, मैं लिख लूंगा। आप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप नोट्स में लिखेंगे, ठीक है? अब मेरी ध्यान से बात यस सर। सुनिएगा। दिस इज ओनली वैलिड आउटसाइड द बैटरी। इनसाइड द बैटरी क्या हुआ? कम से ज्यादा पे गया, हाँ या ना? तो बैटरी का काम ही है यस सर। कि चार्ज को या करंट को जो फ्लो करा रहा है वो लोअर से हायर पे फ्लो करा दे। तो बैटरी के अंदर का जो केमिकल होता है उसका काम ही है कि यार अच्छा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे पहुंचा दो। जब जब आपका सेल वीक हो जाता है तो उसमें यही होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं करा पा रहे, और मेंटेन नहीं करा पा रहे, दैट्स व्हाई एक्सटर्नल सर्किट एज इन ये जो ये वाला सर्किट है इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, इस बल्ब ग्लो नहीं सर होगा। तो सर एक बात पूछनी थी मेरे को। हम्म सर, जो करंट जो फ्लो करता है, हम्म। that is the electrons flowing inside the conductor, एग्जैक्टली right? एग्जैक्टली। that is the that is the electrons present in that particular conductor or present in the battery, इन द कंडक्टर। in the conductor, right? हाँ, अभी देखो And देखो, the battery is helping them move. फर्स्ट लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी। ये जो Yes sir। पंप है, दिस पंप इज बैटरी, और ये जो पानी है, ये पानी दिखा आपको, Yes sir। इलेक्ट्रॉन। अब आप बात समझे एनालॉजी? तो बैटरी का काम Yes sir। है Yes sir। कि उसको लोअर से हाई पे पहुंचा दे, हाई से लो पे तो फिर खुद ही चले जाएगा। यानी खुद ही मेहनत चला जाएगा। बैटरी यस के सर। अंदर बस ये हो रही है नेगेटिव से पॉजिटिव पे पहुंचाने की, दैट इज फ्रॉम लो टू हाई। बाकी बाहर तो ऐसे ही टहलता हुआ चले जाएगा ये, क्योंकि हाई से लो यस पे जा सर। रहा है। तो हाई से लो पे तो ऑटोमेटिकली खुद ही चीजें आ जाती हैं। तो बैटरी में बस हमें यही करना है कि हम एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करा दें। अभी आपको बात यस सर। क्लियर हुई? और वो जो यस सर, हो केमिकल गया। एनर्जी है अंदर ही अंदर, देखो हो क्या रहा है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये भी इलेक्ट्रिकल अपने आप में एनर्जी। एक क्वेश्चन है कि इनसाइड द बैटरी क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है बच्चे? और आपने यस सर। बेसिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा ही होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, Nor be कैन destroyed. ओनली It ट्रांसफर। can only be transferred from one medium to another. या एग्जैक्टली। तो अभी आप जरा ये जो मैंने पिक्चर समझाई है आपको, इसे अपने वर्ड्स में लिख लीजिए, और इन केस यू वांट कि आई शुड स्पीक सम स्टेटमेंट, देन प्लीज लेट मी नो। Yes sir, you can give a particular statement if you have it. ओके ओके। तो आप क्या लिख सकते हैं? द बेसिक फंक्शन ऑफ बैटरी, और अ बैटरी इज यूज टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे लिखिए, अ बैटरी इज यूज टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? Okay sir। चार्ज Yes sir। can flow from higher potential to lower potential by itself. Charges can flow from higher potential to lower potential by itself. But to move charges or anything, अभी तो हम चार्ज की बात कर रहे हैं, और anything, we will require external force to move it from lower potential to higher potential. Something like that. ऐसे लिख लीजिए आप। Should I Okay sir। repeat, or is it clear to you? No sir, no sir, it's Okay, clear। okay, great. Okay sir। I'm done sir। हम्म।
कैन यू डू दिस क्वेश्चन? ये आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं बोल देता हूँ एक बार. हाउ मच वर्क विल बी डन Sir, it will be, चार्ज ऑफ 2 कूलम व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 12 वोल्ट? sir, it's 24 joule. Very right. Yeah. We will just do V equals to W by Q and W equal to V W into by Q. Q, and W equals V into Q. That is That is 24. 12 into 2, that is 24 joules. हाँ, अगर इसको वो माइक्रो कूलम कर दे तो बच्चे उसका फिर ध्यान रखिएगा, आप माइक्रो को पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा कि माइक्रो मींस 10 raised to the power 10 माइनस raised to ऑफ the 6. power minus. ठीक है ना Yes, बच्चे, sir. ये एक बेसिक सा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, Then, कभी sir, अगर वो मिनी कह दे तो 10 raised to the power एग्जैक्ट, minus 6. बिल्कुल बिल्कुल. -3 मिली, मिली मींस Oh, माइनस. -3. Sorry, sorry. Yes, see, -3. तो अभी हम आगे मूव करते हैं, ठीक है ना? -3, that is 1 upon 1000. या एग्जैक्ट. तो अभी Yes. हम थोड़ा सा और समझते हैं. मैंने ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, जैसे कि अगर आपका एक बैटरी है तो आपने लिखा हुआ देखा होगा, ज़्यादातर जो सेल होते हैं 1.5 वोल्ट के होते हैं. तो अगर आपने Yes, sir. ऐसे, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इफ 3 सेल्स आर कंबाइंड लाइक दिस, देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एंड विच विल बी एट हायर पोटेंशियल. तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बना रहा हूँ. विच विल बी एट हायर पोटेंशियल. थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ यार अभी ना मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा Okay. कवर करना है और मेरी नेक्स्ट क्लास है अभी. और Okay, sir. आपसे क्या No problem. पूछेगा, इफ ईच सेल is of 1.5 volt, then what is the potential difference of battery? Potential difference of battery, that is VA minus VB mod equals to how much? Something like that. mod का मतलब समझते हैं आप? No, sir. चलिए इसको तो हम फिर बाद में कवर The करेंगे. मैं, bracket. चलो इसको mod को हम छोड़ते हैं. आप बस बेसिक क्वेश्चन बताइए कि VA और VB में से बड़ा कौन है, किसका पोटेंशियल ज्यादा है? सर VB का ज्यादा है. एग्जैक्टली, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस Positive and that is टर्मिनल. negative. तो Yes, sir. VB बड़ा हो गया. राइट आंसर, फर्स्ट का आपका बिल्कुल Yes, सही sir. आंसर है. और क्योंकि ये 3 सेल हैं तो 1.5 इंटू 3 डेट इज हाउ मच? 4.5 वोल्ट. 4.5. अब देखो ये जो मैंने VA माइनस VB किया ना, तो VA माइनस VB यानी A छोटा है और B बड़ा है. राइट और रॉन्ग? तो अगर मैं A को Yes, 0 sir. मान लूं तो ये कितना हो जाएगा? माइनस. -4.5. तो ये -4.5 जो हम ये मॉड लगा देते हैं ना, ऐसा ऐसा मॉड्यूलस, इसको बोलते हैं मैथ्स में मॉड्यूलस. मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वो हमेशा प्लस ही आंसर देगा. ये बात समझ में आई आपको? Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब बस मैं ये समझाना चाह रहा था कि मॉड्यूलस, ये खैर मैथ्स का लॉजिक है, ऐसी जनरल नॉलेज के लिए Okay, मैंने sir. आपको बता दिया. Okay, sir. ये 11th क्लास में आपका यूज होगा मैथ्स में. तो अभी आपको ये बात समझ में आ गई. और अगर मान लो वो ऐसे करके Yes. भी पूछ ले कंफ्यूज करने को कि VA माइनस VB, मॉड नहीं लगाया, तो क्या लिख के आएंगे आप? -4.5. राइट? -4.5. Yes, sir. तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कर देंगे बच्चे आप, बहुत ईजी है. राइट? Yes, sir. Easy है. प्लीज लिखिए इसको, जल्दी से लिख लीजिए. Yes, sir. बस एक second. हम्म. Yes, sir. I'm done. ग्रेट. I'm done, sir. ओके. तो अभी हम कुछ सिंबल देखते हैं, ये एनसीईआरटी में भी बने हुए हैं. ये बैटरी का सिंबल समझ में आ गया आपको? Yes, sir. अगर बच्चे ऐसे करके वायर बना दे और ऐसे बीच में ऐसे लगा दे, तो वायर क्रॉसिंग ईच अदर विद अ जॉइंट, ये क्या है? आपका जॉइंट है. राइट? ये बात समझ में आई आपको? जैसे एक Okay, sir. तार दूसरे तार से चिपका हुआ है, ये अपना पे में एक तार है और ये एक तार है, तो यहाँ पे एक जॉइंट है जैसे. ठीक है. लेकिन अगर मैंने एक वायर ऐसे बना दिया और एक बना दिया ऐसे,
तो ये क्या है ना, जैसे ये आपका नीचे लैपटॉप का तार जा रहा है, और ये मान लो आपका मोबाइल फोन के चार्जर का तार जा रहा है, मोबाइल फोन। यस सर। तो आपको बात समझ में आ गई, यानी एक दूसरे से जॉइंट नहीं है। ये बात फर्क समझ में आया आपको, यस सर, आगे। जॉइंट में? ठीक है। आगे सर। ये आपका बच्चे क्या होता है, बल्ब का सिंबल होता है, ये की का सिंबल होता है आपका। कौन सा ऑन है, कौन क्लोज्ड की। अच्छा अच्छा, इसमें ये डॉट नहीं आएगा, सॉरी। अरे क्या हो गया? सर क्लोज वाला वो है, और सर ये ओपन वाला क्लोज ऑन है। मतलब ये है कि बल्ब विल ग्लो, ठीक है, ये ओपन है। ठीक है, ये बल्ब बना दिया, ये किसका सिंबल है बच्चे, रेजिस्टेंस। ठीक है। अगर V, यस सर। अभी ये मैं और बता रहा हूँ, ये V बना दे या A बना दे। A बोले तो एमीटर, अ डिवाइस एमीटर। यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। V बना इलेक्ट्रिक दे करंट। बच्चे ऐसे तो V इज नोन एज वोल्ट मीटर। A voltmeter is a device which is used to measure potential difference between पोटेंशियल two डिफरेंस points. अक्रॉस द Right or wrong? कंडक्टर। यस सर। अगर ये मीटिंग एंड हो यस जाए सर। तो जल्दी से आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना, फॉर 5 मिनट्स ओनली। अभी इतना ओके क्लियर? सर। यस सर। आगे मूव किया जाए, ये एनसीईआरटी में है, जिसमें आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट? यस सर। हाँ, इसको आप कॉपी बाद में कर लीजिएगा। अगर ऐसा रेजिस्टेंस बना दे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं रियोस्टैट। ये हमारे स्कूल में होता है रियोस्टैट। रियोस्टैट का मतलब है वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या मतलब इसका? वेरिएबल। वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, मुझे कभी इसका 5 ओम यूज करना है, कभी 10 ओम यूज करना है, कभी लेट से 10,000 ओम यूज करना है, कभी लेट से सिर्फ 1 ओम का यूज करना है। तो मैं इसको अलग अलग हिसाब से लगा सकता हूं, यानी ठीक है, बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? यस सर। ऐसे ही स्विच को कहीं कहीं ऐसे बना देते हैं बच्चे, क्लोज्ड की एंड ओपन की। इस केस में बल्ब ग्लो करेगा या इस केस में बल्ब ग्लो करेगा? सर नीचे वाले केस में, केस नंबर 2 में। बल्ब विल ग्लो, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो हम ग्लो नॉट ग्लो। ठीक है, ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है बच्चे? सही है, आपको यस सर। सारे पॉइंट समझ में आ गए, मेरे याद नहीं आ रहे और क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में। लेट मी ओपन द बुक और से एक दो सर डेफिनेशन वगैरह बताता हूँ आपको। क्या बच्चे? बहुत है सर, इतने ही दे रखे हैं, बस जितना आपने बता दिया बस इतने ही है। नहीं दिए हुए, मेरे याद नहीं था क्योंकि मैंने बहुत दिन हो गए बुक खोले हुए। यस सर। सर सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल, देन अ बैटरी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, प्लग एंड की, अ वायर जॉइंट, वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, ठीक, अब इलेक्ट्रिक सारे बल्ब। समझ में आ गए, बहुत ही बेसिक है बच्चे ये, राइट? Yes, sir. A resistance with resistance R. Oh, a resistor of resistance R. Variable resistance or rheostat, emitter and voltmeter. That's it. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ग्रेट। बस एक चीज़ और बच्चे, मैं अभी लैपटॉप में दिखाता हूँ आपको। यार इसमें वो था, एनसीईआरटी है क्या? अच्छा, पर्सनल स्टफ में है वो, ओके। 1 मिनट में एनसीईआरटी में से ना एक डेफिनेशन मार्क करा रहा हूँ आपको, और फिर बता देता हूँ Okay, कि sir. लाइक आप क्या कर सकते हैं। अभी अच्छा सा दिख रहा है ये बड़ा सा? No, sir, your screen is not visible. माई स्क्रीन इज नॉट विजिबल, इज इट? No, sir, it isn't. आई गॉट इट, व्हाई इट इज नॉट विजिबल। Return to meeting, stop sharing. I'll need to share it again because I have shared only paint with you. Now is it visible, brother? Yes, sir, it is. या तो अभी हमने ये सारा कवर कर लिया। अभी आप क्या कर सकते हैं ना, यहाँ तक पढ़ के आ सकते हैं आप, राइट? कुछ भी डाउट हो जरा सा भी, अच्छा हाँ, इसका 2 सिंबल होता है, एक ये वाला भी, राइट? ज्यादातर यार देखो ना, 12th की बुक में ये होता है, तो मेरे को मतलब अलग अलग बुक अलग अलग रेफर कर लेती है, तो आप दोनों ही पता होने चाहिए। मैं भूल गया था एनसीईआरटी Okay, में sir. दोनों दिए हुए हैं। ठीक है। एक तो ये बात हुई, एक मैं इसकी डेफिनेशन मार्क कराता हूँ आपको। ठीक है ना, वो तो मैंने अपने वर्ड्स में लिख दी थी, ये एक बार एनसीईआरटी का पढ़िए। सिंपल ही है इसमें, देखो देखो, एक तो अगर कभी भी फिजिक्स में ये आ जाए कि 1 वोल्ट या कोई भी चीज को वन कैसे डिफाइन करना है, आप ऊपर भी चीज वन रख दो और नीचे भी वन रख दो। ये बात समझ में आ गई आपको? Yes, sir. तो अभी आप देखिए, इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्या सिंपल है? बिल्कुल। Yes, sir.
भाई 1 1 Yes, कर sir. दिया, और जो मैंने आपको बेसिक आइडिया बताया उस पे ही उन्होंने डेफिनेशन लिख दी, राइट? तो प्लीज इसको Yes, sir. डन कर लीजिएगा, ये दिस इज माय एडवाइस। और एक Okay, और sir. डेफिनेशन होती है, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग, you may learn this also if you want to। बेसिकली आपको Okay, आइडिया sir. समझ में आ गया व्हाट्स द आइडिया ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? Yes, sir. More important than anything, like learning definition is another thing, but understanding the concept is very important। अभी आपको इतना Yes, sir. समझ में आया तो ज़्यादा नहीं हुआ आज हमारा। जब हम ये ओम्स लॉ पढ़ रहे होंगे, जब आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। अभी तो बस चैप्टर को हमने बेसिक बिल्ड किया है, ठीक है ना? अभी जब हम ये Yes, sir. पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। फिर इसका एक्चुअल एक्चुअल चैप्टर शुरू होगा जब हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे। और आप पीछे से, मैं देखता हूँ अगर आप कुछ कर सकते हैं क्या। ये तो नहीं हो पाएगा अभी आपसे, नॉट दिस नॉट दिस। अभी बच्चे आपसे सॉरी टू से एक भी नहीं हो पाएगा पीछे से, लेकिन कोई बात नहीं, जब हम कल पढ़ लेंगे तो कई सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है ना? और Okay, sir. मेरा सजेशन ये है कि अगर आप प्रीवियस 10 ईयर्स की बुक ले लें, इसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कवर वगैरह रहते हैं, या बोर्ड में जो बेसिकली क्वेश्चंस आए हैं, तो प्लीज़ ऐसी कोई बुक परचेज कर लीजिएगा, ठीक है ना? Okay, sir. तो उसमें से आप करते रहिएगा। फिर हम एक एंड में सेशन रखा करेंगे जिसमें यू कैन आस्क योर डाउट्स, ठीक है? Okay, तो sir. वहाँ पे Sure, आप sir. एक साथ मेरे को दिखा सकते हैं क्लास से पहले, ठीक है? ठीक है, आज के लिए बच्चे हम इतना ही रखते हैं। Okay, sir. ओके, बाय। Thank you, sir. वेलकम। And a very good night, sir. सेम टू यू ब्रदर, गुड नाइट। Good night, sir.